Hi everyone, I would like to start with my introduction. I am Dr. Anju Bala, Associate Professor in Commerce, Arya Girls College, Ambala, Kent. Topic of today is capital gains as per assessment year 2021. This is part 2 of capital gains in which we are going to cover exemptions as per section 54. So first of all, there is table of contents, capital gains exemptions, computation of capital gains, exemptions under section 54, sale of residential house property, section 54, sale of self-cultivated agricultural land in urban area, section 54B, compulsory acquisition of capital assets, section 54D, sale of long-term capital asset being land and building or both, section 54 EC, and at last we are going to cover the important questions. Capital gains exemptions. What is the meaning of exemptions? Exemptions वो रिलैक्सेशन है, वो छूट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है। कब दी जाती है? अगर हम कैपिटल गेन्स का पैसा उन प्रेस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से परमिटेड है, तो कैपिटल गेन इज रिड्यूस टू दैट वेरी एक्सटेंट। तो उतने कैपिटल गेन पर हमें कम टैक्स पे करना पड़ता है, यानी उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एग्जेम्पशन मिलती है या छूट मिलती है। जैसे एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम transfer of assets are exempted from tax, that is they will not be included in income of assessee for tax purposes. Exempted capital gains are categorized in two sections: exemptions under section 54 and exemptions long-term capital gain, exempted long-term capital gain under section 10. So सबसे पहले हम करेंगे exemptions under section 54. We are going to cover 4 exemptions: 54, 54B, 54D and 54EC. Rest of the exemptions will be covered in part 3 of capital gains. Exempted long-term capital gains will also be covered in part 3 of capital gains. So first of all, computation of capital gains. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. हमें पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है? अगर कोई एसेट, कैपिटल एसेट 36 मंथ से कम की ड्यूरेशन के लिए रहता है. इन केस ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, दिस ड्यूरेशन इज लेस देन 12 months. In case of unlisted shares, land and building or both, this duration is less than 24 months. और जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आते हैं, दिस ड्यूरेशन इज मोर देन इक्वल टू 36 months. In case of shares, debentures, listed securities, bonds, units of UTI, mutual fund, this duration is more than equal to 12 months. In case of unlisted shares, land and building or both, this duration is more than 24 months. And one thing has to be remembered always, कि in case of long term capital asset, cost price is always indexed, लेकिन no indexing is permitted for short term capital gains. अब exemptions, अब हम ये देखते हैं कि कुछ exemptions जो है वो common है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी है. जैसे ये सारी की सारी जो एग्जेम्पशंस हैं वो शॉर्ट टर्म में भी है, लॉन्ग टर्म में भी है. 54B, 54D, 54G, 54GA and 54H. This is there for short term capital gain as well as for long term capital gain. लेकिन exemption under section 54, 54EC, 54EE and 54F is meant only for long term capital gains. इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ exemptions जो है वो short term capital gain में से भी दी जाती हैं, long term capital gain में से भी दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी exemptions है which is permitted to be taken only from long term capital gain, जो सिर्फ और सिर्फ long term capital gain में से दी जाती है.
अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54. इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर 4 एग्जेम्पशंस, 54, 54B, 54D and 54EC. So first of all we are going to start exemption under section 54. Sale of residential house property. Eligible assessee, individual and Hindu undivided family. Long-term capital gain arising on transfer of house or land appurtenant thereto, मकान के साथ लगी जमीनें. This is exempted subject to the following conditions. Building must be owned by individual or HUF. Income of such house property is chargeable under the head house property. यानी हमने वही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचनी है जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर है. अगर कोई हाउस बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर आता है या हमने अपने एम्प्लॉइज को स्टाफ क्वार्टर्स की तरह दिया है, दैट इज नॉट एलिजिबल. दैट पर्टिकुलर गेन विच अराइजेस फ्रॉम सेल ऑफ दैट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एलिजिबल टू गेट द exemption. House property must be held by the taxpayer for the period exceeding 24 months before transfer. Exemption is available if one residential house is purchased or constructed. अब इसे हम कैसे करेंगे? सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर्ड है. उसे बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उससे हमने नया मकान खरीदा या बनवाया. परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. रेजिडेंशियल हाउस बेचा, रेजिडेंशियल हाउस खरीदा या बनवाया, बट देयर इज ऑलवेज अ टाइम लिमिट फॉर दैट. परचेज ऑफ न्यू हाउस 1 year बिफोर ट्रांसफर और विद इन 2 years आफ्टर ट्रांसफर. ट्रांसफर मीन्स सेल. अगर हमने रेजिडेंशियल हाउस बेचा, बेचने के कारण जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उससे हमने नया मकान खरीदा 1 year बिफोर सेल और 2 years आफ्टर सेल, और कंस्ट्रक्ट न्यू हाउस विद इन 3 years, फुल एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड. अब क्या है? परचेज ऑफ न्यू हाउस 1 year बिफोर सेल. अगर हमने बेचने के 1 साल पहले भी कोई नया मकान खरीदा होगा तो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज ऑल्सो एलिजिबल टू गेट एग्जेम्पशन. या हमने नया मकान खरीदा विद इन 2 years या नया मकान बनवाया विद इन 3 years, वी गेट फुल एग्जेम्पशन. अब आता है क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन. कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इज एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड. अब आता है विथड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन. इस विथड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन को हम पोस्ट कंडीशन भी बोलते हैं. इफ न्यूली परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड हाउस इज सोल्ड विद इन 3 years, एग्जेम्पशन इज टेकन बैक. अगर नया खरीदा मकान 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया जाता है, एग्जेम्पशन वापस ले ली जाएगी. यानी लॉक इन पीरियड है 3 years कि हमने नया खरीदा या बनवाया मकान 3 साल के अंदर अंदर अगर बेच दिया तो एग्जेम्पशन वापस ले ली जाएगी. अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, इफेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, दैट इज अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 2. अब जरूरी नहीं है जिस दिन आप घर बेचते हो उसी दिन हमें नया मकान मिल जाए, तो इसलिए एक ऑप्शन है. If for availing exemption, amount of long-term capital gain is deposited in capital gain account scheme or capital gain deposit scheme of any nationalized bank, then again we get full exemption. और maximum period of deposit क्या रहेगा? 3 years. अगर exemption लेने के लिए हम पैसा capital gain deposit scheme of nationalized bank में deposit करवाते हैं तब भी एग्जेम्पशन मिलती है, लेकिन इसकी कोई ड्यूरेशन तो होगी. कब तक डिपॉजिट करवाना है? ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ऑन और बिफोर 31/7/2020, बिकॉज हम 1920 प्रीवियस ईयर का कैपिटल गेन्स निकालेंगे और 2021 हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा. अब दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
If amount of capital gain does not exceed 2 crore rupees, the assessee may at his option purchase or construct 2 residential houses in India. ये जो हमारी अमेंडमेंट है, दिस इज फ्रॉम 2021 असेसमेंट ईयर, कि अगर कैपिटल गेन की राशि 2 करोड़ रुपए या उससे कम है तो असेसी एक से ज्यादा मकान यानी 2 रेजिडेंशियल हाउसेस भी खरीद सकता है. If the assessee has exercised this option during any assessment year, he shall be entitled to exercise this option for any other assessment year. अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगस्त 18, 2019. इससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से बता रही हूं, हमने रेजिडेंशियल हाउस बेचा, रेजिडेंशियल हाउस बेचा जो हाउस प्रॉपर्टी में कवर्ड था. इससे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ. इससे हमने नया मकान खरीदा या बनवाया. अब हमें प्रैक्टिकल के लिए क्या याद रखना है? हमने कहा हमने नया मकान खरीदा, परचेज. कब परचेज करना है? 1 ईयर बिफोर सेल, बिकॉज 1 ईयर बिफोर सेल 1920 से पहले आता है. और on or before, practical के लिए this thing has to be remembered always 31/7/2020. ऐसा क्यों? क्योंकि हम 1920 प्रीवियस ईयर और 2021 असेसमेंट ईयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं. नो डाउट हम परचेज कर सकते हैं 1 ईयर बिफोर सेल और 2 इयर्स आफ्टर सेल, लेकिन फॉर द प्रैक्टिकल आपको क्या याद रखना है? ऑन और बिफोर 31/7/2020. और कंस्ट्रक्शन कब करवानी है? ऑन और बिफोर 31/7/2020. सो परचेज कब करना है? 1 ईयर बिफोर सेल और 31/7/2020. कंस्ट्रक्ट कब करना है? ऑन और बिफोर 31/7/2020. और अगर हम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं उसके लिए भी क्या डेट होगी? ऑन और बिफोर 31/7/2020. अब हम इसी के बेस पर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज द कंप्यूटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख. एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, क्योंकि हमने नया मकान परचेज करा है 1/7/2020. हमें क्या याद रखना है? 31/7/2020 ऑन और बिफोर 31/7/2020. और 1/7/2020 31/7/2020 के पहले आता है. सो वी गेट द एग्जेम्पशन. 20 लाख में से हमने 10 लाख माइनस करा तो हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 10 लाख. सो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर वी गेट द एग्जेम्पशन एज पर सेक्शन 54. अब आता है एग्जेम्पशन टेकन बैक विच इज रिलेटेड टू आवर पोस्ट कंडीशन. हमने क्या बोला था? अगर नया खरीदा मकान 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया जाता है, एग्जेम्पशन वापस ले ली जाएगी. अब हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 2021. प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 1920. अब उसने क्या करा? जो ये नया मकान खरीदा था उसको 21-22 असेसमेंट ईयर एंड 2021 प्रीवियस ईयर में बेच दिया. कितने का बेचा? 15 लाख का. अब हमें एग्जेम्पशन वापस लेनी है तो हम कैसे लेंगे? एक तो हमने इस 10 लाख के ऊपर टैक्स लगाना है और एक क्योंकि ये 3 इयर्स से कम ड्यूरेशन में बेचा गया तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ. तो 5 लाख हमारा क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. इसलिए जब हम एग्जेम्पशन वापस लेते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे? निल. जिसमें 10 लाख रुपए तो एग्जेम्पशन वापस लेने के हैं और 5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हैं, क्योंकि ये 3 इयर्स यानी 36 मंथ से कम ड्यूरेशन के अंतर्गत बेचा गया है. इसलिए ये कॉस्ट प्राइस निल आती है. तो जब जब हमें एग्जेम्पशन वापस लेना है तो कॉस्ट प्राइस निल आएगा. एक तो इस 10 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स लगेगा और 5 लाख रुपए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि ये ड्यूरेशन 36 मंथ से कम है. अब हम करेंगे एग्जाम्पल 3.
रेजिडेंशियल हाउस बेचा 55 लाख का, एक्सपेंसेस ऑन सेल आए 10,000, तो नेट कंसीडरेशन आई 54 लाख की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमने घर खरीदा 2001-2002 में 7 लाख इंटू 289, इंडेक्स ऑफ 1920, 100 इज द इंडेक्स नंबर ऑफ 2001-2002, तो इंडेक्सिंग के बाद ये आ गया 2023,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 33,77,000। अब हमने अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम 15 लाख रुपए डिपॉजिट स्कीम में जमा करवाए, तो इसका सेक्शन है 54 सबसेक्शन 2, तो हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन आया 1,793,000। अब हम आते हैं, हमने बोला था इफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन CGDS इज नॉट यूटिलाइज्ड और इज पार्शियली यूटिलाइज्ड, बैलेंस इज चार्ज टू टैक्स एज डीम्ड कैपिटल गेन। हमने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में यूटिलाइज सिर्फ कितने करें 10 लाख, विथड्रॉ कितने करें 15 लाख, यूटिलाइज करें 10 लाख, तो डीम्ड LTCG कितना आएगा 5 लाख। तो हम जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं उसके पीछे ये पर्पस होता है कि हम 3 इयर्स तक इस अमाउंट को यूटिलाइज करेंगे मकान खरीदने में या बनवाने में। अगर हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते तो बैलेंस इज चार्ज टू टैक्स एज डीम्ड कैपिटल गेन। अब एक और एग्जांपल है, मिस्टर एक्स sells his residential house in 2021 assessment year। अगर 2021 assessment year है तो previous year क्या होगा 1920। रेजिडेंशियल हाउस बेचा 80 लाख का, 80 लाख का। अब कॉस्ट प्राइस है 8 लाख इन 2004-2005, हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे 289 इंडेक्स नंबर ऑफ 1920 एंड 113 इज इंडेक्स नंबर ऑफ 2004-2005। तो इंडेक्सिंग करने के बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 5953,982, क्योंकि उसने नया मकान परचेज करा सितंबर 2019, यानी दिस पर्टिकुलर परचेज इज 1 ईयर बिफोर सेल। तो 1 ईयर बिफोर सेल अगर उसने परचेज करा तो एलिजिबल टू गेट एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 विच इज 50 लाख। सो टैक्सेबल LTCG कम्स आउट टू 953,982। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड एग्जाम्पशन पर। ये हमने अभी कौन सी एग्जाम्पशन करी है 54। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 54B एग्जाम्पशन, सेल ऑफ सेल्फ कल्टिवेटेड एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन एरिया। एलिजिबल असेसी इंडिविजुअल एंड HUF Hindu undivided family. Any capital gain arising on transfer of agricultural land situated in urban area is exempted subject to the following conditions. Agricultural land should be owned by the individual or HUF. Agricultural land must be self-cultivated or should be used by his parents or HUF for agricultural purposes for at least 2 years before transfer. इसकी एक प्रायर कंडीशन है कि एग्रीकल्चरल लैंड या तो सेल्फ कल्टिवेटेड होनी चाहिए या शुड बी कल्टिवेटेड बाय पेरेंट्स फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स बिफोर सेल। अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड टेनेंट्स कल्टिवेट करते हैं तो एग्जेम्पशन इज नॉट अलाउड, शुड बी आइदर सेल्फ कल्टिवेटेड और शुड बी कल्टिवेटेड बाय पेरेंट्स एटलीस्ट 2 इयर्स बिफोर सेल। अगर टेनेंट्स कल्टिवेट करेंगे तो एग्जेम्पशन इज नॉट अलाउड। तो हम करेंगे कैसे? सेल ऑफ सेल्फ कल्टिवेटेड एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन एरिया। हमने ये लैंड बेची, बेचने के कारण शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उससे हमने नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी। कितने साल में? विद इन 2 इयर्स। फुल एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड। टाइम लिमिट क्या है कि हमने 2 साल के अंदर अंदर अगर नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी, फुल एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच एग्रीकल्चरल लैंड इज एग्जेम्प्टेड
to the extent of the case of new agricultural land purchase. Same withdrawal of exemption post condition, lock-in period 3 years है. If newly purchased land is sold within 3 years, exemption is withdrawn, exemption वापस ले ली जाएगी. इफेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, इसका सेक्शन है 54B सबसेक्शन 2. If for availing exemption under section 54, amount 54B amount of STCG or LTCG is deposited in capital gain deposit scheme, then again full exemption is provided. Maximum period of deposit is 2 years. क्योंकि कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डिपॉजिट करवाने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि वी गेट द एक्सेम्पशन. और कब तक डिपॉजिट करवाने हैं? ऑन और बिफोर 31/7/2020. And if amount deposited in capital gain deposit scheme is not utilized in 2 years, balance is charged to tax as deemed capital gain. अब एग्जाम्पल से पहले फिर से याद रखना है, हमने क्या बेचा? एग्रीकल्चरल लैंड. कहां बेचा? अर्बन एरिया में बेचा. अर्बन एरिया में बेचने के बाद जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उससे हमने नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी. वन थिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड, आइदर इन अर्बन एरिया और इन रूरल एरिया. कहीं भी खरीद सकता है, अर्बन में भी खरीद सकता है, रूरल में भी खरीद सकता है. एग्रीकल्चरल लैंड बेचनी कहाँ है? अर्बन एरिया में. उसके कारण जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उससे उसने नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी, मे बी इन अर्बन एरिया और इन रूरल एरिया, जैसे हमने पहले करा था ऑन और बिफोर 31/7/2020. सेम लॉजिक है कि हमने 1920 का कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, इसलिए जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वी हैव टू रिमेंबर इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड ऑन और बिफोर 31/7/2020. एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली बेची 60 लाख की. खरीदी कब थी? 113/4 जून 2004 में. तो 45 का इंडेक्स नंबर है 113 एंड 1920 का हमारा इंडेक्स नंबर है 289. 301 इज द इंडेक्स नंबर फॉर 2021 प्रीवियस ईयर. नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का हमारा इंडेक्स नंबर 301 है. तो हमने 1920 का इंडेक्स नंबर लेना है. 289 डिवाइडेड बाय 113, दिस इज 289 4 times 0. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 311 4 times 0. अब उसने नई एग्रीकल्चरल लैंड परचेज की. कब परचेज करी है? 30 अप्रैल. नई लैंड उसने परचेज करी है 1 अप्रैल 2020. 20 लाख. कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में उसने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं. कितने? 6 लाख. तो मेरा टैक्सेबल LTCG 1920 प्रीवियस ईयर का कितना आया? 5,10,000. अब आता है कि उसने 6 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाए थे, लेकिन यूटिलाइज कितने करे? 5,50,000. तो डीम्ड LTCG कितना आएगा? 50,000. बिकॉज LTCG या STCG जो हम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करवाते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि हमें प्रिस्क्राइब टाइम में इन्वेस्ट करना है. इफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन CGDS इज नॉट यूटिलाइज्ड और इज पार्शियली यूटिलाइज्ड, बैलेंस इज चार्ज टू टैक्स एज डीम्ड कैपिटल गेन. अब हम करते हैं थर्ड एग्जेम्पशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स. सेक्शन 54D. एलिजिबल assessee, any assessee. That part of capital gain arising from compulsory acquisition of land, building or industrial undertaking should be used by assessee for 2 years for his own business. इसमें भी प्रायर कंडीशन है. जैसे हम कहते हैं assessee should be using, assessee उस जगह पर कम से कम 2 साल तक अपना बिजनेस करता हुआ होना चाहिए. टाइम लिमिट क्या है? इट शेल बी एग्जाम्प्टेड विच इज रीइन्वेस्टेड इन परचेज ऑफ अनदर लैंड एंड बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विद इन 3 years ऑफ एक्विजिशन. कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट. कौन सा कैपिटल एसेट?
लैंड एंड बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। बदले में हमें क्या मिला? कंपेंसेशन। इस कंपेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? डीम्ड सेल प्राइस। अगर इस कंपेंसेशन के कारण जिसे हम डीम्ड सेल प्राइस बोलते हैं, हमें एसटीसीजी होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उससे हम न्यू लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खरीदते हैं। कितनी देर में खरीदते हैं? विद इन 3 years फुल एग्जाम्पशन इज प्रोवाइडेड। कंपल्सरी एक्विजिशन के कारण, कंपल्सरी एक्विजिशन किसका? लैंड एंड बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उससे जो कंपेंसेशन मिलती है वो हमारी डीम्ड सेल प्राइस है। अगर उसके कारण शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उससे हम नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, किसके लिए? या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खरीदते हैं। विद इन 3 years फुल एग्जाम्पशन इज प्रोवाइडेड। इसके बाद आता है विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन, सेम पोस्ट कंडीशन। लॉक इन पीरियड यहां भी कितना है? 3 years का। इफ न्यूली परचेज लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड विद इन 3 years, एग्जाम्पशन इज टेकन बैक, एग्जाम्पशन वापस ले ली जाएगी। यानी इसका लॉक इन पीरियड भी कितना हुआ? 3 years का। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। One building was purchased in 2010 by ABC Limited, an industrial undertaking, compulsorily acquired by government. गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, जिसकी WDV रिटर्न डाउन वैल्यू है 4,50,000 और जो कंपेंसेशन की राशि है वो हमारी क्या बन जाएगी? डीम्ड सेल प्राइस। कंपेंसेशन इज डीम्ड सेल प्राइस। तो कंपेंसेशन हमारी सेल प्राइस हुई, रिटर्न डाउन वैल्यू 4,50,000 और हमें पता है जब रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो ऑलवेज देयर इज आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो इसमें हमारे पास क्या आया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। द कंपनी परचेज्ड अनदर बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 3 लाख। 20th April 2020, यहां भी हमें इन्वेस्टमेंट 31/7/2020 से पहले करनी थी, तो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 50,000। अब हम करते हैं फोर्थ एग्जाम्पशन, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा। अब बेचने के बाद हमने क्या खरीदा? स्पेसिफाइड एसेट्स, जैसे एनी एसएससी वेयर एन एसएससी ट्रांसफर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड इन्वेस्ट द कैपिटल गेन इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट। कैसे करेंगे हम? हमने करा, हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ बेचा। बेचने के कारण हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उससे हमने स्पेसिफाइड एसेट्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे। बॉन्ड्स कौन से होने चाहिए? रिडीमेबल इन 5 years। किसके बॉन्ड्स? ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब कब तक खरीदे? हमने जो ये बॉन्ड्स खरीदे ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेक लिमिटेड, कितनी देर में खरीदने? विद इन 6 months और 31/7/2020 विच एवर इज अर्लियर। प्रैक्टिकल के लिए भी आपने इस चीज का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, विद इन 6 months और 31/7/2020 विच एवर इज अर्लियर। और बॉन्ड्स कौन से खरीदने हैं? विच इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years। Withdrawal of exemption, if new asset is sold or pledged within 3 years, exemption is taken back। और अगर हम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके लिए भी हमें यही याद रखना है, 6 months और 31/7/2020 whichever is earlier, this is the date of deposit in capital gain deposit scheme. So this is the end of part 2 of capital gains. So important questions.
Define capital gains, how it is calculated, what are the capital gains which are exempted under section 54, 54B, 54D एंड 54EC जो हमने पार्ट 2 ऑफ कैपिटल गेन्स में कवर करा है. रेस्ट ऑफ द एग्जेम्पशंस विल बी कवर्ड इन पार्ट 3 ऑफ कैपिटल गेन्स. इसके बाद ये सारे चारों क्वेश्चंस जो है दिस इज ऑफ 5 मार्क्स. कैपिटल एसेट्स, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, exemptions under section 54, exemptions under section 54B, 54D and under section 54EC. So this is the end of part 2 of capital gains. Thank you so much.